distinguished guests of honor, esteemed members of the organization committee, honored family members of the late Mr. Qamar Sib Tain Sahab and participating teams, dear spectators, a very warm welcome to each one of you who are present here today. It's both a privilege and an emotional moment for us to stand before you as we gather for a noble cause to celebrate the spirit, legacy and cherished memories of late Mr. Qamar Sib Tain Sahab through this memorial cricket tournament. Today's event is not just about cricket, it is about remembrance, respect and carrying forward the values of a person who touched many lives with his kindness, dignity and strength. Late Mr. Qamar Sib Tain Sahab's journey, though marked by a prolonged illness, was one of resilience and grace. His memory continues to inspire us all. We are deeply honored by the presence of his family, his beloved family members, including his respected father, his wife, his brother and his brother-in-laws. Your presence and immense meaning to us. On this occasion, we stand with you in remembering the remarkable soul. I would also like to extend a heartfelt welcome to our chief guest, Mr. Mohammad Nazar Sahab, an esteemed educationalist, former lecturer at IIM and retired principal of MMH College Ghaziabad. Sir, your presence today elevates. Team, please come forward. याया इधर आ जाओ यार, सब लोग इधर आ जाओ, थोड़ी देर प्लीज, थोड़ी सी देर के लिए आ जाओ, बस में इधर आ जाओ. आमिर नकवी, टीम मेंबर्स प्लीज कम हियर. आमिर नकवी को बुला लो, बहनों ही हैं इनके. आमिर नकवी साहब प्लीज कम फॉरवर्ड. A special welcome to our guest of honor, Mr. Zia Haider Naqvi Sahab, who is a retired member of Delhi Development Authority and former Sadr of Tanzim-e-Matam. Your contribution to the society and your presence here today is deeply valued and appreciated. This tournament would not have been possible without the dedicated efforts of our organizers and the generous support of our sponsors, including Ren's Foundation, Golden Gem Exporters, Fifth Dimension Interiors, and Amroha Foundation. Your commitment to honoring this legacy, Velvet Vibes as well. Your commitment to honoring this legacy through sports and community engagement is truly commendable. Cricket, as we all know, is more than just a game. It is a celebration of teamwork, discipline, and passion. And today, as team takes the field, they are not just playing to win. They are playing to tribute in remembrance and honor. Let the tournament be filled with sportsmanship, unity, and positivity. Let every run scored and every wicket taken echo the spirit of late Mr. Qamar Sib Tain Sahab. With those words, I officially welcome you all to the late Qamar Sib Tain Memorial Cricket Tournament and request our organizing committee, Mr. Azhar Rais Sahab, who is the CEO of Velvet Vibe Interior Private Limited, and Mr. Farman Haider Naqvi, President of Amroha Foundation, to come forward and present a welcome memento to our chief guest, Mr. Mohammad Nazar Sahab. So I request Mr. Ejaz to come forward and present the memento. Mr. Ejaz from Ren's Foundation will be presenting a welcome memento to our chief guest, Mr. Mohammad Nazar Sahab. Next, I request our organization committee member, Mr. Taqi Imam, the director of Golden Gem Sports, and Mr. Mohammad Taqlain. He's also there. Taqlain? Taqlain, एक मिनट को. Taqlain कहाँ है? Mohammad Taqlain, the director of Fifth Dimension Interiors, to come forward and present a welcome memento to our chief guest, Mr. Zia Haider Naqvi Sahab. Sir, we request you to come forward and collect the... Nadeem Hassan sir, can you please help us in same?
We would also like to present few welcome mementos to the family of late Mr. Qamar Sibtain Saab. I would request our chief guest, Mr. Dr. Mohammad Nazar Saab, to come forward and present a few welcome mementos to the father of late Mr. Qamar Sibtain Saab, Mr. Farzand Sibtain Saab. Please come and collect the memento from our chief guest, Dr. Mohammad Nazar Saab. Mohammad Nazar Saab. Few more award needs to be presented by our chief guest. So please need your presence here for few more awards. The next award is to the brother-in-law. Qamar Sibtain Saab was the brother-in-law of Muhammad Sayyid. Muhammad Sayyidin. So the next award will be presented to Janab Maulana Wasim Saab, who is the brother-in-law of Mr. Qamar Sibtain. The award will be presented by Dr. Mohammad Nazar Saab, and along with I request a few more members can come. Nadeem Hassan Saab, you can present it together. We also need few more members here. Mr. Bakar can come forward. The next award is for the next award will be presented to the Qamar Sibtain Saab's brother, Mr. Amir Sibtain Saab. Sorry, Anwar Sibtain Saab, please come forward. Anwar Sibtain Saab will collect the award from our chief guest. And Mr. Bakar can give him company. Bakar! Anwar Sibtain Saab. Bakar! Bakar! बाकर तो आज खेल मोहम्मद अली तब जल्दी आ जाए यार एक बोर्ड Anwar Sibtain Saab. Next award is for Mr. Gohar Sibtain, who is the brother of Mr. Qamar Sibtain Saab. And I request Mr. Zahir Alam, if he can come, or Mr. Muhammad Ali, if he can come. तो आओ यार मौलाना आप आजिए गोहर के गोहर भैया भाई आप भी आ जाइए माता आप भी आ जाइए Next, I request Mrs. Nishad Sibtain, who is the co-founder of Renz Group and Renz Foundation, to please come forward and present a welcome memento to late Mr. Qamar Sibtain's wife, Mrs. Anwar Fatima. आप आ जाइए आप इंशाल्लाह The next category, we want to. Next, I request our guest of honor, Mr. Zia Haider Saab, to please come forward and present two mementos to Mr. Qamar Sibtain's brother-in-law, Mr. Sulaiman Akhtar Saab, Dada Imam Saab, and I request Muhammad Ali Saab and to come forward. बस भी तुम भी आ जाओ Please.
Next award will be presented by Mr. Zia Haider Naqvi to Mr. Amir Naqvi, who is the brother-in-law of Qamar Siftain Saab. Amir Naqvi. अंजुम Next award will be presented to Mr. Qamar Siftain's brother-in-law, Mr. Hussain Dani Saab. Sir, एक बार. And I request Hussain Nawaz Saab to come forward and present the award. So Mohammad Alamdar Saab can. मोहम्मद अली को ले लीजिए मोहम्मद अली Mohammad bhai, one more award we need to present. मोहम्मद अली ऋषि भाई ऋषि आ जाओ ऋषि भाई आगे ले लेंगे आगे Nishi bhai. अभी ये जो आमिर साहब की तरफ से हैं, ये रोजी ने जो है, ये हमारे जो 3 कैप्टन जो ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उन तीनों कप्तानों के लिए रोजी ने और आमिर ने ये ट्रॉफी तीनों कप्तानों के लिए की है। तो मैं रोजी से कहूँगा वो भी आ जाएं और सोनू अपने हाथ से ही अपने तमाम जो कैप्टन हैं। सकलैन 1 मिनट आ जाओ, पहले तुम ले लो रैंक। ये रोजी जो है और रोजी और सोनू ये 5th डायमेंशन के कप्तान जनाब सकलैन साहब के लिए रोजी जो अज़मी की बहन है, उन्होंने अपनी तरफ से तीनों कप्तानों को एक मोमेंटो देने का निर्णय लिया और उनके साथ उनके शौहर एजाज सिफ्तैन साहब, एजाज सिफ्तैन जिनकी काबिश हो ये टूर्नामेंट आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है। अज़मी वाकई में हमारा बहुत करीबी दोस्त था और सभी लोग उसके लिए यहाँ पर सबकी आंखें नम हैं और ये मेमोरियल इतनी जल्दी उसके इतना हमारी उम्र का ही था, वो हम हमारे साथ का था, हम बहुत क्रिकेट खेले साथ में। और हमने एक बार हमें जो था हिंदू कॉलेज की फील्ड में अज़मी और बज़मी दोनों भाइयों ने इतना मारा था कि 40 गेंदें उड़ गई थी और हम हमसे आउट नहीं हुए थे। वो बहुत ख़तरनाक बल्लेबाज थे और बहुत ही अच्छा खेलते थे दोनों। तकीमाम की जगह उनके वाइस कैप्टन अगर यहाँ हो तो वो आ जाएं, या तकीमाम अगर तो 1 मिनट के लिए आ जाएं ग्राउंड से बाहर। तकीमाम अगर 1 मिनट के लिए आ जाए तो इमाम को दे दो भाई सुलेमान भाई आएंगे सुलेमान उनका भाई या मोहम्मद अली ले लें। सुलेमान नहीं तुम जाओ आओ सुलेमान सुलेमान जो तकीमाम के भाई हैं और अज़मी के बहनोई भी हैं, वो उनकी जगह पर ये उनका अवार्ड ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए और हमने एक कोशिश की, उसको आप लोगों ने सराहा। वाकई में आप लोग आना एक इतनी लंबा सफ़र, इस एज में उनके वालिद और उनकी वालिदा आई हैं, हम उनका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी रिक्वेस्ट पर वो सब यहाँ पर आए। मैं मोहतरमा निशात सिफ्तैन साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा यहाँ पर आएँ। और मैं सबसे पहले अज़मी की अम्मी यहाँ पर आई हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि वो 1 मिनट यहाँ पर आएँ और भाभी उनको ये शॉल उड़ाकर। शबीना आ जाओ, शबीना तुम भी। रोजी तुम तीनों बहनों आ जाओ, सब आ जाओ। ये वकार साहब की बच्ची हैं और ये भाई नूरी की लड़की हैं, ये अज़मी की बहन है।
भाई नूर सिप्तान साहब की वाइफ जनाब नूर बानो साहिबा से भी गुजारिश है कि वो भी ज़रा स्टेज पर आएँ। ये आज जो आपको यहाँ पर इतना जंगल में मंगल दिख रहा है वो इनकी ही औलाद ने आज यहाँ पर वो प्रोग्राम सजाया है अपने भाई की याद में। वाकई में हम सब लोग जितना भी अज़मी को याद करें और एजाज़ का शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि एजाज़ ने इतनी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए मुहैया कराई कि हम सब लोग यहाँ जमा हुए और इसमें उनके वालिद भी आए हैं, उनकी वालिदा भी आई हुई हैं, उनकी वाइफ भी आई हुई हैं। वो जब यकीनिंग हो जाएगी ना उसके बाद सब लोग होंगे। तो अभी जो है हम इस अवार्ड सेरेमनी को यहीं रोकते हैं, उसके बाद कुछ हाँ हमारे जो रैंक्स फाउंडेशन के जो ऑनर हैं जनाब एजाज सिप्तान साहब ने हमारी भाभी के लिए और अज़मी के जो वालिद साहब हैं उनके लिए एक छोटा सा तोहफा ये अपने देना चाहते हैं अपने ताई को और अपनी भाभी को। मैं गुजारिश करूंगा कि भाभी आ जाएं 1 मिनट और। भाभी पहले आ जाएं और ये रैंक फाउंडेशन की तरफ से टोकन ऑफ थैंक्स है जो एजाज सिप्तान साहब और उनकी वाइफ अपने अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब फरजंद सिप्तान साहब से कि वो भी आए और उनको भी एजाज सिप्तान साहब मौलाना ए भाई आप भी आ जाइए। ये हमारे दोनों ही सरपरस्त हैं, मौलाना वसीम साहब भी और ज़िया हैदर साहब भी, और एजाज रैंक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। मैंने अपने ताए को वहाँ से आने का शुक्रिया अदा किया है, तो वो इस एज में यहाँ पर आए हैं। वाकई में हमारे लिए एक बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि ऐसे मौके इतनी एज के बाद ये यहाँ पर आए हैं और इतनी हिम्मत इन्होंने दिखाई है। हम तमाम हमारी जो पूरी टीम है वो आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला और आप यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया। मैं नज़ार साहब से गुजारिश करूँगा 2 मिनट माँ साहब बोल भी दें, 2 मिनट बोल दीजिए, फिर ज़िया भाई बोल देंगे। ऐसे ये चलता रहेगा, मैच उधर चलता रहेगा। आ जाइए माँ साहब थोड़ा सा। मैं पहले मौलाना से गुजारिश करूँगा, मौलाना बोल। मुश्किल होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लहू अस्सेहतु अल्फुन नेमा। ये एक कौल है जिसमें कहा गया कि सेहत जो है वो 1000 नेमत है। अगर इंसान की सेहत अच्छी है तो दुनिया में तमाम चीज़ें वो कामयाबी के साथ हासिल कर सकता है, और अगर सेहत से इंसान मार खा जाता है या खुदा न खास्ता कोई उसके अंदर वीकनेस आ जाती है तो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आज ये मेरे साथी हैं सब लोग, और मुझे आज बज़मी भाई भी यहाँ पर याद आ रहे हैं जो इनके अज़मी के बड़े भाई हैं। बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन स्पोर्ट्स वाला इंसान जो भी हमारे दरमियान में नहीं है इस वक्त, वो बाहर हैं, और उनका छोटा भाई अज़मी। ये यार दोस्त वो नेमत है कि इसके लिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बदनसीब है वो इंसान जिसका कोई दोस्त नहीं है, और उससे ज़्यादा बदनसीब है वो इंसान जो अपने अच्छा दोस्त बनाने के बाद उसको छोड़ दे, अच्छे दोस्त को छोड़ देता है। यानी अच्छे दोस्त की मसला यह है कि आपके जो दोस्त होने चाहिए वो अच्छे, मुतदय्यन,
दीनदार, नेक तीनत, अच्छे आमाल वाले, करेक्टर के लिए अच्छे होने चाहिए। अज़मी के अंदर कुछ खुसूसियात थी। मेरा अज़मी का ताल्लुक 40 साल का है, बिल्कुल आमने सामने। कोई दिन ऐसा होता होगा जो मेरे बाहर दिन गुजरे हैं 12-14 साल उसके अलावा कि अज़मी की मेरी मुलाकात न हो रही थी। इंस्टीट्यूट में हम दोनों का प्रोफेशन भी एक था, वो भी टीचर था, मैं भी टीचर हूँ उसी इंस्टीट्यूट में। अज़मी की कुछ चीज़ें बड़ी अजीब थी, बड़ा ज़िद्दी मिजाज था। यानी हम जब क्रिकेट खेलते थे इमामबाड़े में, तो सारा जो इमामबाड़े में क्रिकेट का जो प्रोग्राम सजाते थे वो अज़मी की जिम्मेदारी थी। बॉल उनकी, बैट उनका, पैड उनका, अगर मर्जी है नहीं है तो वो भी नहीं, और हर चीज़ में अव्वल। अब एक ज़बरदस्त चीज़ ये थी कि जिस चीज़ का दिल अज़मी का चाह रहा है, मिसाल के तौर पर बैटिंग करना चाह रहा है वो, और वो आउट हो गया, तो जब तक अज़मी नहीं मानेंगे आउट हो गए तो वो आउट नहीं है। ये कुछ चीजें ऐसी थी अज़मी की जो बड़ी यानी जॉली थी, बहुत ही नोटी वाली चीजें थी। और या बॉल कर रहे हैं, अज़मी यार तुम्हारी बॉल है, तुम्हें नहीं पता 3 और वाइड हो गई थी मेरी, तो अभी मेरा ओवर पूरा नहीं हुआ क्योंकि दिल चाह रहा अज़मी का। तो ये कुछ चीजें अज़मी की बड़ी लाजवाब थी। हमदर्द बहुत था। एक वाकया और सुना दूं, यानी एजुकेशन में वो लड़का जो पहले थोड़ा वीक था, उसके बाद उसने क्या अपने अंदर सलाहियतें पैदा की हैं कि एक साहब आए, जबरदस्ती, उनके थोड़े से फाइनेंशियली वीक थे, कि तुम बीएड कर लो। उसने कहा भाई अजीज भाई मेरे पास पैसे नहीं, मेरे सामने की बात है ये, मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कैसे नहीं है, पैसे हो जाएंगे और तुम थोड़े थोड़े करके दे देना। क्या अजीज भाई फीस बहुत है कि मैं चलूंगा। सिराज हाशमी साहब के पास पहुंचे वो, हाशमी डिग्री कॉलेज, जाके कहा कि इसकी फीस आप हाफ करेंगे, जो भी आपके मतलब जो इम्पोर्टेंट जो जरूरी खर्चे हैं वो ले लीजिए। अज़मी ने 3 बिरादरी के लड़कों से उसको कर्जा दिलाया लड़के को, और उसका बीएड पूरा कराया। ये मेरे सामने की बात है भाई, ये चीजें भूली नहीं जा सकती। बहादुर, किसी का कोई असर नहीं, कभी किसी से मुतासिर नहीं हुआ, मगरूर नहीं था, कभी किसी से हक बात कहने में डरता नहीं था, कभी नहीं डरा। जो बात कहनी हुई साफ करके, ये मैंने मेरे साथ उसने सर्विस की है, 1 दिन 2 दिन नहीं, उसने मेरे साथ 10 साल तक सर्विस उसी इंस्टीट्यूट में की है जहां पर मैं था, वहीं अज़मी थे। कुछ चीजें हैं दोस्तों, मैं अपने सारे साथी एजाज हैं, फरमान हैं, अंजुम यहाँ पर हैं, मुराद है, अजहर हैं, बहुत से लड़के मैं गिना दूंगा, ये सब, ये नदीम खड़े हैं। ये लोग ऐसे हैं मेरे दोस्त कि मुझे नहीं पता इनसे मेरी कब से दोस्ती है। यानी जब हम बड़े हुए हैं तो हमने अपने आप को एक साथ देखा है। मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, नज़ार साहब, अज़मी के वालिद फरजंद सिप्तैन साहब, और जिया हैदर साहब यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग हैं। उनकी वालिदा यहाँ आई हैं, उनकी चच्ची यहाँ आई हैं, मेरी बहन है वो यहाँ पर मौजूद है, वाइफ अज़मी की। पूरा मेरे भाई दोनों आए हैं, मुर्तज़ा और सलीम, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अज़मी ने कभी अच्छे दोस्तों को नहीं छोड़ा, और इन लोगों ने सैयद कमर सिप्तैन नकवी मेमोरियल ये टूर्नामेंट करा के इन्होंने याद दिला दिया कि अज़मी अगर तुम चले गए हो हमारे दरमियान से, तो हम भी तुम्हें कयामत तक छोड़ने वाले नहीं हैं, जब तक हम में जान है, दम है। क्रिकेट हो, इल्म का मैदान हो, या मजहबी मैदान हो, या समाजी मैदान हो, कोई भी मैदान हो, नेक मैदान होना चाहिए, सही मैदान होना चाहिए, जहां पर इंसान तरक्की कर सके और अपने दीन की, अपने मजहब की, इनकी खिदमत कर सके। मेरी फैमिली की तरफ से मेरे फादर ने ये रैंक फाउंडेशन जो इसकी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और जो यहाँ पर लड़के जमा हुए हैं अज़मी के नाम पर, ये टीम सुबह जमा हुई है, उनके लिए एक छोटा सा हदिया भेजा है कि जो मैं ये चाहूँगा कि हमारे फरजंद सिप्तैन साहब, अज़मी के वालिद मोहतरम जनाब मेरे उस्ताद मास्टर नज़ार साहब और जिया हैदर साहब तशरीफ़ लाएँ
और मैं अपनी बहन को भी बुलाना चाहूँगा, वो भी आ जाएं। और ये हम जो इसके सर्वे सर्वा हैं, जो इसके प्रेसिडेंट हैं, उनको हम ये हदिया एक छोटी सी एक नाचीज़ चीज़ है और मेरे वालिद की तरफ से है, सैयद मोहम्मद हादी जैदी की तरफ से मैं ये उनको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना वसीम साहब, आपने वाकई में वो बातें याद दिला दी तो वाकई में बिल्कुल सच है कि वाकई आदमी कभी किसी से डरा नहीं, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं थी वसीम में कि जो है उसका अज़मी का ये कहा जाए कि अज़मी कहीं किसी से अगर अंजुमन में भी है तो अंजुमन में भी अज़मी हर किसी से लड़ जाता था, हर बात को करता था। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का कि उन्होंने हमारी इस काविश को सराहा और उन्होंने जो भी हमारे लिए दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उनका यहाँ पर प्रेजेंटेशन ही होनी बहुत है, मौलाना वो लेके आए, उनकी तरफ से जो भी है हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं रैंक फाउंडेशन की तरफ से तो उन्होंने हमारी इस कोशिश को सराहा। ये मेरे वालिद की तरफ से है। मैं तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलखुसूस अपने ये हमारा दोस्त है एजाज़, ये बहुत मेरा साथी है और इतने साथी हैं ये लोग, जिया हुए, एजाज़ हुए या फरमान हुए कि हमारी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, सबके एक हिसाब लगा हुआ है, मत समझिएगा। हम लोग जो है मतलब एज के हिसाब से भी अब 50+50 और हमारे घर में एक दूसरे का पर्दा भी नहीं है। अब ये कहते हुए मतलब थोड़ा सा आप समझेंगे कि मौलाना है, नहीं, हम बचपन से खेले हैं, हमारे दोस्त हैं, नदीम हुए और ये अजीज़ हैं, रिश्तेदार भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। तो मैं इनका और तमाम टीम का और तमाम ग्रुप्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया, इज़्ज़त अफजाई की है और हमें इस काबिल समझा कि हमें इस टूर्नामेंट से जोड़ सकें। इंशाल्लाह आगे भी जो भी खिदमत हो सकती होगी इंशाल्लाह हम अंजाम देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना वसीम साहब। मैं गुजारिश करूँगा मुमताज़ सिप्तैन से कि वो यहाँ पर आएँ और मौलाना से गुजारिश करूँगा मौलाना उनका एक कॉल उड़ाकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मुमताज़ भी अमरोहा से तशरीफ़ लाए हैं और एजाज़ सिप्तैन के छोटे भाई हैं और अज़मी के भी छोटे भाई हुए हैं। वसीम जो आज के एंकर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी आ जाएं और एक शॉल हम अपनी तरफ से आप लोगों को देना चाहते हैं। एजाज़ सिप्तैन से गुजारिश करूंगा कि एजाज़ सिप्तैन और मौलाना वसीम साहब निशान हैदर साहब निशी जो A1 टेंट हाउस के प्रोपराइटर हैं, वो मुसलसल हमारे साथ, हाँ वसीम तो आ ही गए हैं, वसीम के तो एजाज़ सिप्तैन साहब इस्तकबाल कर ही रहे हैं। वसीम आज के होस्ट भी हैं और हमारे अमरोहा से ताल्लुक़ रखते हैं, फिरोज़ाबादी के बच्चे हैं, हैदर भाई के लड़के, बहुत ही अच्छी एंकरिंग करते हैं और मुसलसल कई बड़ी टूर्नामेंटों में आप जो है वो एंकरिंग करते हैं। मैं गुज़ारिश उनसे और शॉल डालकर इस्तकबाल करें। इश्क़ साहब जो A1 टेंट हाउस के प्रोपराइटर हैं और A1 टेंट हाउस प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत बड़ी कंपनी है और काफ़ी बड़े बड़े काम करते हैं ये लोग। मगर ये इनकी एक खूबी है कि कोई भी अगर हमारे जैसे मौलाना साहब आपको बताऊँ कि हम जो भी करते हैं, अमरोहा फाउंडेशन तो मुसलसल करती रहती, कभी भी ये पैसे नहीं लेते, सिर्फ किराया लेते हैं कि उठा लाओ और पहुंचा दो, कभी पैसे नहीं लेते। आज भी इनका ये है कि इन्होंने कहा कि भाई ले जाओ, जो सामान हो वहाँ ले जाओ, पहुंचा दो ना। तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये मुसलसल हमारे साथ करते रहती हैं। मैं खासतौर से अपनी अमरोहा फाउंडेशन की और रैंक की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि रैंक्स का ये पहला प्रोग्राम है तो इसलिए रैंक्स के आज इन्होंने शुरुआत कर दी है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे होता रहेगा। तो अब ये हमारी अवार्ड सेरेमनी जो है इस वक्त यहीं ख़त्म हो गई। अब इस मैच के बाद हम सब लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मैच शुरू है।
रेडी है घर का है मौसम बहुत हमको बाहर का नहीं बहुत शुक्रिया तो नज़ार साहब का कि माँ साहब हमारे लिए आए और माँ साहब भटक भी गए थे। माँ साहब वहाँ से मेरे पास फोन आया कि भाई मैं कहा मुझे लुटवाओगे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि वाकई में लोग जो है हम ही अंदर को चले गए थे तो हमें लग रहा था कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मगर माँ साहब तो अकेले थे। बहुत शुक्रिया।